Namaskar, Jai Shri Radhe Krishna. I welcome you all on behalf of Krish Physiotherapy Rehabilitation Center KPRC to my YouTube channel Harshika Gupta 2059. Today we have a topic sciatica pain relief exercises. आज हम बात करने वाले हैं sciatica पेन के बारे में, sciatica दर्द के बारे में, sciatica क्या होता है, उसके कौन कौन से कारण है, what was the etiological factors or causing factors of sciatica, उसकी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, and what was will be the all about the physiotherapy perspective of sciatica. Before starting, I would like to say ये वीडियो just for educational purpose to awareness purpose, not any substitute or for the diagnosis or treatment. ये किसी भी तरह की बीमारी का sciatica से ऐसे relevant है, hip region से any region irrespective किसी भी तरीके से कोई diagnosis या treatment का बेस नहीं है, कोई जुगाड़ या कोई शॉर्टकट नहीं है. If you have any severe condition, severe problem, if you have pain, any kind of a medical condition, go to the qualified physiotherapist and visit to the clinics and get the proper assessment, detailed assessment, and then diagnosis, and then go for the treatment. So let's begin about the today's session. As this presented by the KPRC, Krishna Physiotherapy Rehabilitation Center. This is the only the educational resources or awareness resources, is not a substitute for a clinical diagnosis or treatment. Consult a qualified physiotherapist for individualized assessment or personalized customized assessment of your conditions. Now, basic understanding कर लेते हैं कि sciatica क्या है, sciatica nerve है या बीमारी है. So the first foremost, I will start from that sciatica is not a disease itself. Sciatica एक nerve है. It is the longest nerve. I mean, not the longest. It's the largest nerve of the body. And on the DM or comment me what is the longest human nerve, or which is the longest human nerve. My bad. It's a longest nerve of the human body. Just comment on the comment box. So sciatica जैसा हमने जाना, इट्स नॉट अ डिजीज, एक नर्व है जिसकी कंप्रेशन या इरिटेशन से पेन कॉज होता है. तो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इरिटेशन या कंप्रेशन sciatica पे पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड अनदर थिंग, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर स्पाइन and travel through the buttock region and extend down the leg to the foot. So again, I'll just read it. You can take a screenshot of the screen. It is already right over there. This nerve originates, which nerve? Sciatica nerve originates from the lower spine, travel through the buttock region and extends down the leg to the foot. When it is compressed or irritated, the pain radiates along this path. Now move toward the next. क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कारण है sciatica नर्व में पेन होने के, या sciatica जैसा बोलते हैं कि जब बीमारी है, कंडीशन आप डायग्नोस करते हो कि sciatica हो गया है, sciatica नर्व इंपीचमेंट हो गया है, sciatica नर्व इरिटेशन हो गया है. तो पहला foremost symptom is that radiating pain. Radiating pain travels through the lower back through buttock, down back of the thigh to the leg or foot. आपके बटक से होते हुए बैक ऑफ द थाई, लेग और फुट में रेडिएट अगर हो रही है, तो उस वो पेन जो सिम्टम है वो sciatica पेन का सिम्टम है, sciatica नर्व का सिम्टम है. टिंगलिंग या नमनेस होना, मतलब पैर में, फुट में, लेग में और बैक ऑफ द थाई और एट द बटक्स यू विल फील लाइक पिन प्रिकिंग, कोई पिन चुभ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन हो रहा है, या फिर लॉस ऑफ फीलिंग इन दी अफेक्टेड एरिया, आपको टच सेंसेशंस फील नहीं होना, काफी लंबे समय के बाद फील हो रहा है, उस तरह से कोई भी सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस, सूनपन होना, चीटी सूनपन आना, ये एक सिम्टम है sciatica पेन नर्व का. नाउ बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, शार्प बर्निंग और इलेक्ट्रिक लाइक पेन दैट वर्सन विद मूवमेंट. आप मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उस वक्त बर्निंग सेंसेशन का होना एक sciatica पेन का, sciatica नर्व इरिटेशन का मेन सिम्टम है.
रेडिएटिंग पेन, टिंगलिंग एंड नमनेस, सूनपन, चीटीपन होना, दर्द एक जगह से दूसरी जगह महसूस होना, जलन होना, बहुत ज्यादा शार्प पेन फीलिंग होना, these all are the causes of the and symptoms of the sciatica pain. मसल का टाइटनेस होना, although it's not always, but कभी कभी stiffness in the lower back, बटक और लेग मसल affecting the mobility. आपको चलने में दिक्कत आ रही है, इतनी टाइटनेस हो रही है, या आपको पर्टिकुलर पोजीशन में दिक्कत आ रही है, आप खड़े नहीं हो पा रहे लंबे समय, आपको मसल्स वीक लग रही है, आपको लग रहा है आप गिर जाएंगे, या आपको महसूस नहीं हो रहा है, सेंसेशन नहीं है, that is also one of the reason of sciatica pain nerve irritation or compression. Now what are the common contributing factors? ऐसे कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से sciatica होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं लंबे समय, वो आपको sciatica पेन होने में कंट्रीब्यूट करते हैं. पहला है प्रोलॉन्ग सिटिंग और सिडेंटरी बिहेवियर. आप बहुत लंबे समय एक ही पोजीशन में बैठे हैं, या फिर एक ही पोजीशन में है, खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो 2 6 6 घंटे 4 4 घंटे आप बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में ही है, या आप साइड लाइन पोजीशन में है तो आप साइड लाइन पोजीशन में फॉर 2 to 3 hours और मोर देन 1 hour और मोर देन 60 minutes अगर आप हैं, तो इट इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ sciatica nerve irritation. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं आप, ना कोई एक्टिव लाइफस्टाइल आपने अडेप्ट किया हुआ है, it is also one of the reason to due to the weakness of the muscle sciatica pain will cause. Third is poor posture and spinal alignment. अब posture adaptation, आपका posture alignment, posture of the body, direction of the body or alignment of the body will if is poor, then also the one of the cause of symptom of the sciatica pain will be occur. Now lumbar disc involvement, herniation है, bulging है, disc hernia, disc bulging, if it is, then also sciatica pain will be causes or one of the condition will be occurring. टाइट पायरिफॉर्मिस का टाइट होना या ग्लूटियल मसल का टाइट होना. पायरिफॉर्मिस मांसपेशी है आपकी, ग्लूटियस और ग्लूटियल मांसपेशी है आपकी. अगर ये दोनों में से भी कोई मांसपेशी आपकी टाइट होती है, मसल टाइट होती है, देन ऑल्सो sciatica पेन आपको कॉज होगा. अनदर फैक्टर इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक. आप कोई वजन, आप कोई भारी चीजें उठा रहे हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, या आप आमतौर पर घर पर एज अ हाउस वाइफ, हाउस मेकर, आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं इन अ रॉन्ग पोस्चर विदाउट प्रॉपर वे, then also it will cause in long term process the sciatica pain will definitely cause to you. Now reduce core stability and muscle weakness. आपकी जो मांसपेशियां, कोर मांसपेशियां, कोर मसल्स है, उनकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, मसल वीकनेस कॉज करेगा. ये भी मसल वीकनेस होना, कोर स्टेबिलिटी पुअर होना, रिड्यूस होना, और ऑल्सो द मेन कॉजिंग फैक्टर्स और एडिशनल फैक्टर्स विच विल कॉज द sciatica पेन, जिनकी वजह से आपको sciatica पेन होगा. नाउ मूव टूवर्ड, जैसा मैंने आपसे कहा sciatica पेन कहाँ से हो रहा है, sciatica nerve का ओरिजिनेट बटक से लेके बैक ऑफ द थाई, इट विल गोज टू द लेग एंड फुट, इट इज द रूट. एंड ऑल्सो आपको बटक रीजन में टिंगलिंग, नमनेस हो रही है, एंड धीरे धीरे टाइम के बाद वो बैक ऑफ द थाई भी आ रहा है, लेग ऑफ द थाई, लेग ऑफ द बैक ऑफ द लेग एंड फुट, इट विल कॉज द sciatica पेन. आप देख सकते हैं, दिस इज आवर vertebral column, these are the disc, blue in color, sky blue in color, and this is called the herniated disc. यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी डिस्क जो है इनपिच हो रही है, प्रेशराइज्ड हो रही है, दब रही है, जिसकी वजह से नर्व इरिटेट हो रही है. कौन सी? sciatica nerve. It will cause the sciatica pain, that nerve compressed by herniated disc. तो जरूरी नहीं है sciatica अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से, किसी और कॉजिंग फैक्टर की वजह से आपको sciatica nerve इरिटेट हो रही है, कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से आपको sciatica पेन आ रहा है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मूविंग टू फॉरवर्ड, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अगर लेते हैं या लेने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या गोल्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं. पहला, रिड्यूस करेगा नर्व इरिटेशन. जिस नर्व इरिटेशन की वजह से आपको पेन कॉज हो रहा है, sciatica हो रहा है, वो रिड्यूस होगा. एड्रेस कंप्रेशन इन्फ्लेमेशन अराउंड sciatica nerve pathway.
एड्रेस करेगा कि कहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है sciatica nerve के अराउंड, जिसकी वजह से वो उस तरह की एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल होंगी, कस्टमाइज होंगी आपके लिए, जिसकी वजह से आप उस पेन से रिलीफ मिलेगा, आपको दर्द में राहत मिलेगी। सेकेंड जो गोल होगा, आफ्टर द रिड्यूस नर्व इरिटेशन इज द फर्स्ट गोल। सेकेंड गोल, इंप्रूव मोबिलिटी। आपको चलने फिरने में जो तकलीफ हो रही थी, आप जो 5-10 मिनट के बाद आप दिक्कत आ रही थी, वो नहीं होगी, उस मोबिलिटी को बढ़ाएंगे वो रेंज के थ्रू। रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करेंगे स्पाइन की, हिप की एंड लेग की थ्रू द गाइडेड मूवमेंट। पर्टिकुलर जो मूवमेंट गाइड किए जाएंगे उनकी वजह से, और मसल्स में ताकत, मांसपेशियों में ताकत भी लाएंगे, रेंज ऑफ मोशन को भी बढ़ाएंगे, प्रिजर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग एंड अदर प्रोटोकॉल्स, जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी कैसी होगी, इंप्रूव होगी। तो दूसरा गोल हमारा क्या हुआ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का, दैट इज इंप्रूव द मोबिलिटी। थर्ड इज इनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली मसल की रेंज बढ़ेगी, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो रेंज ऑफ मोशन विल बी आल्सो द वन ऑफ द फैक्टर जो कि इंप्रूव होगा बाय डिफॉल्ट, जिसकी वजह से टाइटनेस ऑफ द मसल विल रिलीज एंड also contributing to nerve compression which will release। तो जब नर्व कंप्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल की मांसपेशी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी एंड करेक्ट पोस्चर में अडेप्ट करने में हेल्प करेगा। कौन? दैट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमें क्या हेल्प करेगा? करेक्ट पोस्चर को स्टेबलाइज करेगा, प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर ड्यूरिंग सिटिंग, स्टैंडिंग एंड डेली एक्टिविटीज में क्या सही पोस्चर होना चाहिए, और फिजियोथेरेपिस्ट एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल से ही आपको मिलेगा। एंड फंक्शन इंप्रूव करेगा, पेन फ्री परफॉर्मेंस देगा, आपके डेली रूटीन, डेली रोजमर्रा की लाइफ में जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उनमें आपको पेन फ्री मूवमेंट परफॉर्म करने की फंक्शंस को इंप्रूव करेगा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट गोल। तो फिजियोथेरेपी से हमें क्या क्या फायदे होंगे, हमने इसके बारे में बात की। नर्व इरिटेशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, आपकी मूवमेंट्स को बढ़ाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, आपके फंक्शंस को, रोजमर्रा के काम जो आप कर रहे हैं जिनमें दिक्कत आ रही थी उनको बेटर करेगा, पोस्चर को अच्छा करेगा। एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, सिम्टम, सीवियरिटी एंड फंक्शनल कैपेसिटी। ये लाइन सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है। और आगे आपकी कोई भी शारीरिक, आपकी हड्डियों से रिलेटेड, आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, इवन फिजिकली एंड मेंटली कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम, ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग है, हर एक पेशेंट की सिम्टम्स अलग है, उसकी सीवियरिटी, उसकी, आपकी जो गंभीरता है वो अलग है, आपकी फंक्शनल कैपेसिटीज अलग है। कोई बंदा 8 से 9 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, कोई सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो सबकी कंडीशंस, प्रायोरिटीज अलग हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी अलग होगी। ना आप समझते हैं जो एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए sciatica पेन के लिए और रिकमेंड की जाती हैं लिटरेचर के बेस पर, रिकमेंडेड है। तो पहली है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। कैसे परफॉर्म करेंगे, आप स्लाइड्स पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पेल्विक टिल्ट क्या होता है, आप बैक सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे, बैक को सपोर्ट रख के नी को बेंड करेंगे कुछ इस तरह से, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं। फीट शुड बी फ्लैट, फीट टच होने चाहिए सरफेस से, ऑन द सरफेस, एंड इंगेज योर एब्डोमिनल मसल जेंटली। आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स, आपकी पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको जेंटली इंगेज रखना है। पुलिंग योर बेली बटन टुवर्ड्स योर स्पाइन, मतलब आपको जैसे सांस खींचते हैं ना, वैसे उस तरह से आपको होल्ड करना है अपनी एब्डोमिनल मसल्स को स्पाइन की तरफ, नीचे की तरफ। एंड देन फ्लटर योर लोअर बैक अगेंस्ट द बेड और मेट बाय टिल्टिंग योर पेल्विस अपवर्ड। आपको कुछ इस तरह से, जब आप एब्डोमेन को प्रेस करेंगे स्पाइन की तरफ, इट विल गोज टू लाइक, आपको पेल्विक जो है अपवर्ड टिल्ट होगा, इट इज कॉल्ड पेल्विक टिल्ट। एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर द 5 सेकेंड व्हाइल मेंटेनिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। आपको जब ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ब्रीदिंग रोकनी नहीं है, एज नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जाना है। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको 5 सेकेंड, एटलीस्ट मिनिमम 5 सेकेंड अपवर्ड रखना है, पेल्विक को इस तरह से टिल्ट रखना है बाय होल्डिंग योर एब्डोमेन टुवर्ड द स्पाइन एंड रिलैक्स, एंड देन अगेन स्टार्ट। आप कीप कंटिन्यू टिल 10 टाइम्स, 10 रिपीटेशंस करने हैं मैक्सिमम, विद कंट्रोल्ड स्मूथ मोशन। आप जैसे जैसे करेंगे 15 डेज, 21 डेज, ये
टाइम पीरियड आप 10 रिपीटेशन से 15, 15 to 20 and 20 to 25 आप within 3 to 4 month you will increase accordingly and even more faster depend on your capacity. But breathing कहीं पर भी होल्ड नहीं करनी है, कहीं पर भी आपको सांस नहीं रोकनी है. That is the way to do this pelvic tilt exercises. Now what was the benefit of this pelvic tilt exercises? हमने एक्सरसाइज करना सीख लिया, हमने एक्सरसाइज पता होगी, क्या क्या फायदे होंगे वो देख लेते हैं. First, you can see on the slide that activate core stabilizing muscle. Core stabilizing muscle क्या, आपकी जो बैक की कोर मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, एंड एब्डोमिनल कोर मसल्स, इनको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, एक्टिवेट करेगा, एंड सपोर्ट लंबर स्पाइन अलाइनमेंट. आपकी जो कमर की स्पाइन है, लंबर स्पाइनल है, उसको सपोर्ट करेगा, अलाइनमेंट देगा, उसके कर्व्स को मेंटेन रखेगा जो नेचुरल कर्व होने चाहिए, and improve awareness about pelvic position. Right? Now second exercise की बात करते हैं, that is knee to chest stretch. आप ये सभी जानते हैं, आप सीधा लेटेंगे, घुटनों को मोड़कर घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ लाना है. For example, this is my knees and I should keep my knees like this and now move toward the chest. So that is called knee to chest. Starting position क्या होगा, like comfortable on your back with both legs extended as I told you, and movement करेंगे, gently bring one knee towards your chest, holding behind the thigh or knee. आपको या तो नी थाई के बैक से आपको इस तरह से होल्ड रखना है, या फिर नी को इस तरह से लॉक करेंगे और टुवर्ड दी चेस्ट आपको लेके आना है. होल्ड फॉर 10 to 15 सेकेंड एज पर योर डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन. आपको नॉर्मल लेग एक्सटेंड करना है, देन वापस लेके आना है, एंड यही रिपीटेशन 5 to 10 टाइम्स करना है, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी. इस एक्सरसाइज में भी आपको ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, कोई सांस नहीं रोकनी, नॉर्मल ब्रीथ के साथ आपको लेके चलना है. एंड ध्यान रखना है, अवॉइड फोर्सफुल पुलिंग, मूव स्लोली एंड स्टॉप इफ पेन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. आपका पेन बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज को करके बढ़ रहा है, तो आपको बहुत धीरे धीरे वापस लेके जाना है एंड रोक देनी है एक्सरसाइज, रिलैक्स करना है, देन फिर स्टार्ट करना है. नाउ अगेन नी टू चेस्ट की क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी है इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं. तो रिड्यूस लोअर बैक मसल टाइटनेस. आपकी जो लोअर बैक है, आपके निचले हिस्से की कमर का जो मसल टाइटनेस है, मांसपेशियां जो टाइट है, उसको कम करेगा. फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा हिप फ्लेक्सार्स की, और जेंटली स्ट्रेच करेगा आपकी लंबर रीजन को, जो कमर वाला रीजन है आपका, जो बैक पेन का जो बैक रीजन है आपका, उसको क्या करेगा, जेंटली स्ट्रेच करेगा, नॉर्मली स्ट्रेच करेगा, जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और पेन की फीलिंग को, आपकी पेन सेंसेशन को आपको रिड्यूस करेगा. नाउ we have a third exercise, sciatica nerve mobility. Sciatica nerve mobility gentle neural mobilization technique है. Basically it will be performed definitely by the physiotherapist under the observation of their qualified physiotherapist. but आप जब करेंगे तो वो एक बार आप जब repetitions कई बार multiple supervisions physiotherapist के हो जाएंगे, you will train by that exercise, not expertise of that exercise, but आप train हो सकते हैं under the qualified physiotherapist. आप देखेंगे दिस एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म जेंटली एंड स्लोली. न्यूरल मोबिलिटी एक्सरसाइज एम टू इंप्रूव द नर्व एबिलिटीज टू ग्लाइड स्मूथली थ्रू द सराउंडिंग टिश्यूज. तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, सिटिंग पोजीशन, अपराइट सिटिंग पोजीशन बैठना है, काइंड ऑफ लाइक दिस. बैक शुड बी स्ट्रेट एंड लेग both the legs should be straight without knee bending, and with a good posture and shoulder relaxed, knee extended knee, slowly strengthen one leg while keeping heel on the surface. आपकी जो एड़ी है, हील है, वो बेड पर या प्लिंथ पे है, उस पे नीचे टच रहेगी, सरफेस से उठानी नहीं है. एंकल को फ्लेक्स करना है जेंटली, एंड टोज जो है वो आपके अपवर्ड रहेंगे, इट्स लाइक दिस, काइंड ऑफ दिस. ये टोज आप एग्जांपल से अज्यूम करिए, दीज आर द टोज, तो आपके इस तरह से रहेंगे, एंड नी शुड बी, हील शुड बी ऑन द सरफेस, आपकी टच रहेगी. फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस, इस तरह से आपका एंकल रहेगा और आपको फ्लेक्स करना है. So flexion kind of this, और toes आपके upward रहेंगे toward the ceiling, as you can see it is writing here, and wrote here. Now return slowly, वापस आपको normal position में आना है, normally movement करना है. कितने repetitions maximum कर सकते हैं, 5 to 10 repetitions per side. दोनों leg में आपको 10 each और 5 each करना है as per the capacity. 2 to 3 sets करने हैं in a one time, approximately 15 times, 15 times around to
30 times, right? So you can go with it, this exercise, but again under the observation of qualified physiotherapist or at the clinic of the physiotherapist, by asking, or definitely he will or they will recommend, whosoever is available over that time. Stop immediately if symptoms worsen. This exercise is not suitable for everyone with sciatica. Consult your physiotherapist. जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो एक्सरसाइज है वो आपको घर पर आमतौर पे करने के लिए सलाह नहीं है, बिकॉज एक तो क्रूशियल है, तो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। कौन सा मूवमेंट कोई गलत तो नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रेशराइज तो नहीं है, कोई ज्यादा मूवमेंट एक्सर्शन में तो नहीं जा रहा है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए। एंड सेकेंडली, ये हर पेशेंट को सूट नहीं करती है एक्सरसाइज। कई बार आपको नर्व कॉज इरिटेशन बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर और रॉन्ग मूवमेंट एंड रॉन्ग द वे ऑफ परफॉर्मेंस, द फोर्स यू आर एक्सर्टेड, कई बार उसकी वजह से इश्यूज होते हैं। तो आप जब भी करें तो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर टू ट्रायल इवन, must consult with your qualified physiotherapist. Now moving to fourth exercise of the session, that is piriformis stretch. So piriformis, basically the lateral side of the compartment of the leg or thigh is the muscle of that lateral compartment. Targeting the hip muscle tension, the piriformis muscle located deep in the buttock region can sometimes compress the sciatica nerve when tight or shortened. अगर ये मसल टाइट होती है, शॉर्टन हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो कई बार ये पायरिफॉर्मिस की वजह से भी हिप मसल में टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से sciatica nerve will get irritated and it will cause the pain. So एग्जीक्यूशन स्टेप्स क्या होंगे, किस तरह से हम पायरिफॉर्मिस मसल को, मांसपेशी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो लाई ऑन योर बैक विद बोथ नीज बेंड, आपको बैठ जाना है कुछ इस तरह से, एंड क्रॉस वन लेग ओवर द अपोजिट नी, आपको एक नी के ऊपर दूसरी नी को क्रॉस करना है लाइक दिस, एंड फिगर ऑफ 4 बनाना है आपको इस तरह से, फॉर एग्जांपल, एंड जेंटल पुल अक्रॉस द थाई टुवर्ड योर चेस्ट। जब आप इस तरह से फिगर ऑफ 4 बना लेंगे तो अपनी थाई को इस तरह से चेस्ट की तरफ पुल करना है, एंड यू शुड फील ए स्ट्रेच इन द बटक रीजन, आपको बटक रीजन में यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा, एंड होल्ड फॉर 15 to 30 सेकेंड एटलीस्ट, एंड 3 to 5 टाइम्स आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी करने बैठी हूँ तो एक रेपिटेशन किया, 2, 3 और मैक्स 5, वी कैन डू दैट। रिड्यूस प्रेशर अराउंड द sciatica nerve while रिलीजिंग टाइट पायरिफॉर्मिस मसल फाइबर। आप अगर इसकी वजह, यही कारण आपके पायरिफॉर्मिस का टाइट होने का, जिसकी वजह से sciatica nerve इरिटेट हो रही है एंड आपको पेन कॉज हो रहा है, तो while you doing this you will get instant relief and feeling comfortable with pain, free from the pain kind of a feeling, you will definitely experience that. Now moving toward the fifth exercise of the session, that is cat and camel mobility. Basically it is a general exercise for the back or the back related issues, and it will definitely recommended for the general exercise because it will strengthen the core back muscles also. So starting position like this, the quadruped position इसे बोला जाता है। Position yourself on your hands and knees with wrist under shoulder and knees under hips. I hope it is clear. Now camel arch बनाना है kind of this, इस तरह से पीठ को उठाएंगे like a camel के हम की तरह दिखेगा। Slowly arc your back upward, tucking chin toward the chest like this and drawing belly button in. आपको इस तरह से रखना है, इसमें भी कोई ब्रेथ कंट्रोल नहीं है, नॉर्मली विद द ब्रीदिंग के साथ आप करेंगे। एंड cat posture like this, relax down, gently relax your back downwards and allowing spine to curve naturally, spine का natural curve आ जाएगा while lifting head slightly upward like this. So this is how you have to perform the cat and camel mobility. cat and camel exercise आपको कैसे करनी है, आप पिक्चर्स को फॉलो करके कर सकते हैं। एंड बेनिफिट क्या होगा इससे, फर्स्ट द इम्प्रूव द स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी, रिड्यूस स्टिफनेस रिड्यूस होगी, एंड फ्लूइड्स मूवमेंट को एनकरेज करेगा entirely of the spine and back. And also you can perform this again the same repetition number 8 to 10 times and coordinating movement with breathing. Don't hold your breathing. सांस रोककर, आपको अभी तक कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं बताएगी जहां पर आपको सांस रोकनी है या होल्ड करना है ब्रेथ को, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो होल्डिंग और ब्रीदिंग एट एनी एक्सरसाइज टिल नाउ, सो कीप श्योर अबाउट द सेम थिंग. नाउ we will go toward the
posture prevention and when to seek help. अब हम बात करेंगे posture, कैसे सही posture अपनाना है, क्या क्या प्रिवेंट करना है, कहाँ पर हमें एक्चुअली में नीड है हेल्प. तो फर्स्ट, सिटिंग अर्गोनॉमिक्स, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग. आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक पोजीशन अवॉइड करनी है. ऐसा नहीं है लंबे समय तक सिर्फ बैठना ही नहीं है, लंबे समय तक लेटना भी नहीं होता है, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़ा भी नहीं रहना चाहिए. मेंटेनिंग लंबर सपोर्ट विथ कुशन और रोल टॉवल. आप जब बैठ रहे हैं लंबे समय भी आप, सिटिंग वर्क ज्यादा है, डेस्क जॉब ज्यादा है, कीप द लंबर सपोर्ट एट द बैक ऑफ योर, बैक साइड ऑफ योर मसल, by which it will support to the muscle, it will help to good quality or good long term maintain the quality and strengthening of your muscle also. Avoid slouch posture, इस तरह के slouch posture को avoid करना है. To be upright, maintain the posture, but shoulder should be relaxed, wrist should be supported, ankle should be supported, kind of this posture you have to be maintained. Change the position frequently, every 30 minutes or 45 minutes near around. आप इसके लिए अलार्म का भी यूज कर सकते हैं to while you are working. एक स्लो पिच लो साउंड पिच का आप अलार्म लगा सकते हैं 45 मिनट्स का, एंड आफ्टर 45 मिनट ईच हैव टू स्विच द पोजीशन टू टेक अ वाटर, टू टेक अ स्मॉल वॉक और टेक अ स्टैंडिंग पोजीशन or a break for to energize, to exercise more and to work in that particular energy. Lifestyle modification, practice proper lifting techniques, maintain healthy weight, stay physically active, warm up before exercise, sleeping in a supportive position. आप स्लीपिंग की कौन कौन सी सही पोजीशन से क्या करना चाहिए, कौन सा पोस्चर, क्या हाइट पिलो होना चाहिए, मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, फॉर एवरीथिंग यू कैन प्रेफर माय प्रीवियस वीडियो or you can search on my YouTube channel, that is sleeping correct sleeping posture, kind of these keywords you can get my lecture. You can, for detailed analysis and assessment of that lecture about the sleep correcting posture, you can prefer that lecture of my from my channel. Now red flags क्या क्या है which require immediate medical attention. क्या आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो तुरंत जाएं अपने नियर बाई क्लिनिकल qualified clinical practitioner or qualified clinical physiotherapist who can assess you in detailed assessment, who can diagnose and refer you or prefer or give you the customized personalized physiotherapy treatment to you. Now see कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं जो इमरजेंसी केयर को रिकमेंड करते हैं. फर्स्ट, सीवियर मसल वीकनेस, बहुत ज्यादा मसल वीकनेस इन लेग और फुट. आप लॉन्ग टर्म ज्यादा खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा वीकनेस लंबे समय से फील करते हुए आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पैरों में जान नहीं, उतनी दम नहीं है, वीक में आपको कोई भी, आपको अगर वीकनेस महसूस हो रही है, आप कोई सामान उठा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल जनरली आमतौर पे आजकल कंप्लेंट आता है कि आप एक भरी हुई बाल्टी को जब उठा रहे हैं आपको बहुत सीवियर पेन आ रहा है, आपको स्नीजिंग हो रही है, आपको बैक पेन हो रहा है, आपको इश्यू हो रहा है, तो जस्ट गो immediately to the qualified physiotherapist to get your personalized exercise for the concerned issue. Loss of bowel and bladder, आप bowel and bladder movement आपको पता नहीं लग रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, incontinence हो रहा है, immediately need to be go to the qualified physiotherapist. And progressive numbness और tingling, पहले थोड़ा थोड़ा चीटीपन आता था, सूनपन आता था, अब दिन में 3 से 4 बार फील हो रहा है, हफ्ते में 50-60 बार आप फील कर लेते हैं सेम फीलिंग कि आपको चीटियां आ रही हैं, पैर में चीटियां चल रही हैं, लेग में चीटियां चल रही हैं. सो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स विल कॉज द immediate help of the qualified physiotherapist. Now you can see this, it's on the based on this posture we had already short video, you can refer that also. इस पोस्टर्स के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या कॉजेस हैं शाटिका पेन के, दैट इज हर्निएटेड डिस्क क्या है, स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, की वजह से आपको शाटिका पेन हो सकता है. डिजेनरेटिव डिस्क भी एक कारण है, पायरिफॉर्मी सिंड्रोम जैसे हमने बात करी, पुअर पोस्चर और पुअर लिफ्टिंग टेक्निक्स भी शाटिका पेन का कारण हो सकती हैं. एंड शाटिका पेन ऑलवेज सिर्फ इसका सोल्यूशन सर्जरी ऐसा नहीं है, सर्जरी ही इसका सोल्यूशन नहीं है. इफ यू feel this lecture is good helpful. तो हम बात कर रहे थे अबाउट मिथ एंड फैक्ट, क्या क्या भ्रम है और क्या फैक्ट्स हैं शाटिका पेन को लेकर. तो पहला मिथ की बात करते हैं, दैट शाटिका ऑलवेज नीड्स सर्जरी. ऐसा बिल्कुल नहीं है, शाटिका पेन की हमेशा सिर्फ
सर्जरी से ही ठीक हुआ. वी हैव अ कंजर्वेटिव मेथड्स, वी हैव अ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एंड रिसर्च कहती है बेस्ड ऑन द एविडेंस देयर इज अ मोस्ट केसेस ऑफ शाटिका इंप्रूव्स विद इन दी 6 to 12 6 से 12 हफ्तों के बीच सही अप्रोच, राइट एक्सरसाइज के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ हम पेन फ्री हो सकते हैं शाटिका के, और शाटिका से हम रिकवरी ले सकते हैं. एटलीस्ट पेन सेंसेशन, पेन जो फीलिंग है उसको रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ 6 से 12 वीक्स के अंदर बिना कोई सर्जरी के. सेकंड, वी हैव द मिथ दैट बेड रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द शाटिका. बेड रेस्ट बेस्ट नहीं बल्कि हार्मफुल है, बिकॉज अगर हम शाटिका पेन के केस में है, शाटिका पेन इरिटेटेड है, कंप्रेस्ड है आपकी बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क और एनी काइंड ऑफ अ रीजन, डीजेनरेटिव डिस्क, पायरिफॉर्मिस टाइट है आपकी, पोस्चर रॉन्ग अडेप्ट किया हुआ है, we should stay active and do the gentle movements to get the faster recovery. हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, हमें हल्के फुल्के एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइजेस एंड लो मूवमेंट्स, माइल्ड मूवमेंट्स करते रहने पड़ेंगे टू गेट द फास्टर रिकवरी. थर्ड, वी हैव शाटिका एंड स्लिप डिस्क बोथ आर द सेम. जैसा बिल्कुल नहीं है ऐसा, जैसा हमने डिस्कस किया, ये कारण है. जैसे हर्निएटेड डिस्क हुआ, डिजेनरेटिव डिस्क हुआ, वैसे ये भी स्लिप डिस्क एक कारण है शाटिका पेन को कॉज करने का, बिकॉज शाटिका नर्व इरिटेट हो जाती है बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क, वहां पर प्रेशर कॉज कर रही है शाटिका नर्व के रूट पर, इसलिए. So many conditions can cause slip disc is not just a slip disc. Sciatica is not a disease, right? Fourth, we have last, that is pain means more damage. Pain does not always means serious damage. कई बार पेन हमें बताता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन आवर बॉडी. उसको रेक्टिफाई करने के लिए वी हैड अ फिजियोथेरेपिस्ट, वी हैड अ फिजिशियंस टू रेक्टिफाई एंड गेट द बेटर सोल्यूशन ऑफ इट. सो इफ यू आर फीलिंग वीकनेस ऑफ द मसल, बॉल ऑफ ब्लडर की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है, या फिर स्लिप डिस्क, या फिर पायरिफॉर्मिस टाइट है, पोस्चर सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो एक बार फिजियोथेरेपी, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें. देन go about the diagnosis and the better treatment, whatever the suitable as per the your physiotherapist. If you find this video helpful at any manner, like awareness or get education, get more aware about the conditions, there is another videos also in the on my channel Harshika Gupta 2059. Like, share and subscribe. If you found helpful, then can do it only in that case. And for the those who are enrolled in the PPT course, physiotherapy course, or the young physios, they can directly or indirectly, I just ask to subscribe this channel for stay tuned for the more upcoming conferences, national international conferences, workshops, webinars, seminars, quiz events, and the get insight more about the physiotherapy by on this channel through the post and the long videos as well. Thank you. Have a good day. Jai Shri Radha Krishna.